Hello. Hello, hello. Okay, great, great. So let me check. Ma'am, am I Okay. audible? Yes, yes, you are audible. So, Vaibhav, tell me a little bit about yourself. Let's know each other before we start the session. So, yes, tell me about where do you stay and what is the job profile that you are looking out for. Okay. Ma'am, my name is Vaibhav Surte, and uh, I'm will be going to third year engineering, and I'm pursuing computer science engineering with Mm. specialization in artificial intelligence and machine learning from Okay, great, Lokmanya Tilak College of Engineering. great, great. So, so my hobbies are I have a strong interest in technology and problem solving. So I'm right now I'm building my knowledge in subjects like operating system, data structures, and many more, and improving my skills. Mm-hmm, mm-hmm. Basically, I'm a disciplined and consistent person who believes in continuous learning and self improvement. Lovely. Good to know about you, Vaibhav. I think you are based nearby Navi Mumbai only, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, You're from my father Mansarovar? works in. No, I'm from Khanda Colony, Khandeshwar. Acha. Okay, okay. Can you Actually, guys see my screen? yes, yes. Yeah, yeah, please say. My dad works in Kotak Life. So by his Mm-hmm. reference, I got your number. Oh, wow. So what's your My father's name is dad's name? Bhushan Surde. Okay, okay, okay. Great, great. So, Vaibhav, can you see my screen? Yes, ma'am, it's visible. Should I on my camera or? Okay. Can you see the PPT? Yes, yes. Can you see the PPT presentation that I'm No, sharing? the screen Okay, is great. freezed. So I think my screen is, can you see? I'm changing the screen. My Is it visible to you? You can't see? No, no. Can you reshare it? Okay. So I will reshare. Please confirm once you are able to see. Okay. Can you Yes, see now now? it's visible. Yes, now it's visible. Oh, so let me adjust my screen little bit. Okay. So let's start with the masterclass. I guess last time you were not. I believe you didn't get the mail. Actually, there is one automated Yes, I mail didn't got once the you mail. register. Yes, yes, that is why all the problem happened. That might have been due to the technical glitch. So Okay. no worry, we are here. So let's start. First, let's understand कि हमारा जो आज का जो ये पूरा session है, how is it going to navigate, right? You Okay. have the clarity. So Ma'am, first, before you start, I just wanted to ask a question. hmm, Will you be hmm, providing any reference material, like what to do that you in can interview use. sessions, like PDF or documents? Will you be sending हाँ, or? you will get one PDF. Okay. After this session is done, you will get access to the course. This it's recorded version, and उसमें ही जितने भी documents होते हैं आपको resources वगैरह हम उसमें ही attach कर देंगे. So that you can download from there. Okay. Okay. Make sense? Okay. So we'll start with the introduction because it's very important that you know who am I and why am I the right fit for this session. And we will start with the resume. We will cover the LinkedIn, interview mistakes that you really need to avoid, grooming and hygiene essentials that you need to take care of. I'm removing the earphone because I will be able to hear me properly. Yes, ma'am, you are audible clearly. Okay. Okay. So I'm not using this. Just give me a second. I don't know if you say something in between. I won't be able to hear because it's raining heavily. Okay, so we will cover the grooming and hygiene essentials that you really need to take care of, email and telephone etiquettes,
यहाँ पे हम बहुत ब्लंडर करते हैं, हमको लगता है हम परफेक्ट हैं, बट बेसिक मिस्टेक्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं. And then mindset is everything. No matter how smart you are, but if your mindset is not on the right track, you won't be able to get a good job offer. Okay. So let's understand why preparing for the interview is important. Number one, any every time someone sees you for the first time, it just takes hardly 5 to 7 seconds to form an impression about that person. बोलते ना, किसी को देख के हमने 5 सेकंड के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये इंसान सही है या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. करेक्ट. इंप्रेशन दो टाइप के ही होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके वो जो 30 मिनट का जो टाइम होता है इंटरव्यू में, यू आर यूटिलाइजिंग दैट फर्स्ट इंप्रेशन पीरियड, दोस 5 seconds इन अ वेरी 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 फ्रूटफुल मैनर. ओके. सो वी विल बी सीइंग हाउ टू क्रिएट दैट 5 seconds ऑफ दैट फर्स्ट इंप्रेशन. देन आजकल अगर आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको लगता है कि हमने टेक्निकली प्रिपेयर कर लिया तो वी आर वेरी परफेक्ट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर्स आर रिजेक्टिंग द कैंडिडेट बिकॉज ऑफ द पुअर कम्युनिकेशन. हमको लगता है कि कम्युनिकेशन में क्या ही है यार, डेस्क में तो काम करना है, मुझे कौन सा पब्लिक स्पीकर बनना है. बट your communication plays a very important role, especially as you step into a leadership role. And they are looking out for a leader for their company. Even if it's a beginner level job, they are looking for a candidate who can stay with them in a long term basis and they can get a good leader for their company. Correct? Then interviewers reject unprepared candidate. Imagine you are an interviewer and आप आपके पास में ऐसे ही इंटरव्यू देने आ गई और आपने मुझे देखा 5 मिनट में बात कर गई, आपको पता चला कि यार ये तो मुंह उठा के आ गई है, इसने कुछ भी हमारी कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं है, कुछ भी इसको आता नहीं है. वुड यू लाइक टू इवन गेट इंटरव्यूड मी? आपको नहीं अच्छा लगेगा, राइट? आपने दिमाग में Right. बना लिया होगा यार इसको रिजेक्ट करना है, भले या फॉर्मेलिटी के लिए वो 30 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू, फिर भी आप मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछोगे बिकॉज इट्स योर कंपनीज, it's the responsibility on you by the company to take interview. Okay. So that is why most of the time rejection happens because हम बहुत unprepared चले जाते हैं इंटरव्यू में. And then success comes from the preparation and confidence. This is very basic. हमको सबको पता है कि हमको प्रिपेयर होके जाना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मैंने पर्सनली भी देखा है कि उनको लगता है यार इंटरव्यू में तो देना है, 10 जगह दे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएंगे. वो जो कहीं ना कहीं वाला माइंडसेट होता है ना, वो आपको एक एवरेज जॉब तो दे सकता है बट इट कैन नेवर गिव यू द बेस्ट जॉब, योर ड्रीम जॉब. यू विल नेवर बी एबल टू get there if your mindset is not on that track. Okay. So always prepare for the interview. So before we move forward, let me introduce myself so that you know who is going to interact with you, who is going to take session for the next 2 hours. So I am Kajol, as you know me, and my qualification is chartered accountant. I have worked approximately 4 years, in fact, more than 4 years in MNC. And since past 2 years, I am working as a personality transformation coach. I am training people on getting interview ready, preparing, getting dressed for the interview, or working on their mindset, communication, body language, and on their styling part. So I have worked with people ranging from 20 age to the 70 age. तो मैंने हर एक एज के लोगों के साथ में काम किया है. And I can tell you that interview success is not about the age or experience, it's all about your attitude. Okay. So no matter where you are, whether you are starting, whether you are an experienced person, you are equally good. So these are some of my achievements, you can say. I am also a published author of the Travel World book. This is available on Flipkart, Amazon, and any other platform you search on the Google. And these are some platforms where my articles have been published. So you can search and read out there. Now that's all about me. And let's get back to our today's topic. Okay. So give me a quick thumbs up. Are we ready? Are we ready, guys? Great, great. So a good energy in the room. Okay. So before we start, let's do a quick poll. What is your biggest interview challenge? Based on your experience, अब तक आपने
क्या चैलेंज है जो आपको लगा कि यार यहीं पे दिक्कत आ रही है मेनली? So let me know in the chat box. I I am just checking my chat box. Okay. Okay, no problem. A, B, and E. Okay, communication, managing nerves, nervousness, and answering tricky questions. Good. Good. So I understand ये सब चीजें होती हैं, especially if you are a fresher and okay, it doesn't matter even if you are fresher or experienced. 10 साल बाद भी अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो भी आपको नर्वसनेस तो होगी ही. Yes, but definitely you should know how to handle that nervousness in the positive manner. Okay, so that's good thing. Okay, so let's understand what is that you are going to take away after the end of this session. Number one, how to create a powerful first impression. Powerful and positive first impression. First impression तो हम सभी बनाते हैं, but it's very important that your impression is positive. Then second thing, LinkedIn प्रोफाइल मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में देखा है लोग बहुत इग्नोर करते हैं. काफी लोगों को मैंने खुद कितने लोगों का लिंक्डइन ट्रांसफॉर्म करके दिया है एंड आई हैव सीन दोस पीपल आर एक्चुअली इन अ लीडरशिप रोल एंड उनका जब आप लिंक्डइन देखोगे तो ऐसा लगता है उन्होंने बस अकाउंट बनाया और छोड़ दिया. बट नाउ इट इज लिंक्डइन मैटर्स अ लॉट बिकॉज रिक्रूटर्स चेक वेदर यू आर अ जेन्युइन पर्सन और नॉट, और उसके लिए आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वही काम आता है. Then second, identify and avoid the most costly interview mistakes. बहुत टाइम हमको लगता है कि हम इंटरव्यू दे दे के बहुत ग्रूम हो गए हैं, बट कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं. हमको तब तक नहीं पता चलता है जब तक कोई हमको एक्चुअली ऐसा मिलता नहीं जो कि आपको बोलता है कि ओके दिस इज अ मिस्टेक एंड यू आर डूइंग इट रिपीटेटिवली. और वो हार्डली ही होता है, हार्डली आपको कोई बताएगा कि आपने क्या ब्लंडर किया इंटरव्यू में. करेक्ट. आपको आज तक किसी ने बताया है कि आपने क्या गलती किया है? किसी एचआर ने बताया है को कि आपको क्यों रिजेक्ट किया है? कभी ऐसा हुआ है? आई डोंट थिंक सो. नहीं बताते. दे इनफैक्ट डोंट टेल यू ऑल्सो कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो कि नहीं हुए हो. करेक्ट. देन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ प्रोफेशनली. सम पीपल आई हैव सीन इंटरव्यू के लिए ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे लगता है कि अपने घर पे आ रहे हैं. You really need to look professional. You are not going for an audition. You are not going for a creative role. Some people go with a lot of tattoo, a lot of jewelry and all that. It looks like they are going for some acting role. So that is also you have to avoid, right? Then master email and telephone etiquettes. Definitely you should know some of the etiquettes related to email and telephone, because the first thing that happens once your resume gets shortlisted, you get a call from the HR professional and your HR is going to ask you some basic question and you should be able to answer those questions in the right manner. And the confidence building is definitely a winning strategy. Now let's start with the resume part, क्योंकि वो सबसे it's the first step in getting a interview call, right? So सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, जब आप एक एचआर को अपना रेज्यूमे देते हो, तो एचआर आपके रेज्यूमे में देखने क्या वाला है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल दोस थिंग्स सो दैट यू क्रिएट योर रेज्यूमे इन दैट फॉर्मेट इन द राइट मैनर. तो सबसे पहले आपका नाम, योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, वेयर डू यू स्टे, ऑल दीज थिंग्स शुड बी इजीली रीडेबल. योर जॉब टाइटल, आपका जो हेडलाइन है ये क्या रोल से मैच हो रहा है क्या. ओवरऑल लेआउट कैसा है. जैसे ही एचआर ने आपका सीवी देखा, उसको देख के लगा रही है कितना क्रम्पल्ड है, इतना लंबा है, ऐसा लग रहा है कि उसने पूरा जिंदगी का बायोडेटा ही डाल दिया है. दे आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू दोज बिकॉज दे हैव हंड्रेड कैंडिडेट फॉर जस्ट वन रोल. सो उनके पास में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इतने सारे रेज्यूमेज आते हैं कि उनको एक ऐसा रेज्यूमे चाहिए होता है जो कि शॉर्ट हो, छोटा सा हो, 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, प्रोफेशनल हो, वर्ड्स उसके ऐसे हो जो कि उनके रोल से मैच कर रहे हो. आपका रिसेंट एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है बिकॉज रिसेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप नेक्स्ट रोल चूज करते हो. एंड सबको पता होता है यार कि अगर मैंने 10 जॉब किए हुए हैं तो मैंने 5 साल पहले कौन सा जॉब किया है, इट डजेंट मैटर. किसी को नहीं याद रहेगा. इवन एचआर नोज दिस फैक्ट. सो व्हाट इज रेलेवेंट, योर रिसेंट जॉब एक्सपीरियंस. And then the keywords are really important because see,
इफ यू आर नॉट यूजिंग द राइट कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे, आपका एटीएस जो सिस्टम होता है ना एचआर के पास में, जिसके थ्रू वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आई टेल यू, जब आप किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हो करियर पेज पे जाके, तो आपका रेज्यूमे पहले एटीएस सिस्टम में सबमिट होता है, वहां से वो शॉर्ट लिस्ट होता है, तब एचआर उसको देखता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने करियर वेबसाइट पे, करियर पेज पे उनके अप्लाई कर दिया और एचआर का कॉल आ जाएगा, एचआर देख लेगा आपके रेज्यूमे को, तो दैट इज रॉन्ग। एचआर नहीं देखेगा, और एचआर के देखने के पहले ही एटीएस ने अगर आपके रेज्यूमे को यू नो इट हैज रिजेक्टेड, यू विल गेट ऑटोमेटेड मेल, मतलब वो किसी इंसान के पास जाने के पहले ही आपका रेज्यूमे का लाइफ टाइम खत्म हो गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अब एक राइट रेज्यूमे होता कैसे है। हमको पता चल गया कि एचआर तो ये चीजें देखता है, बट मेरा रेज्यूमे होना कैसे चाहिए, सो दैट माय रेज्यूमे इज गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड एंड आई एम गेटिंग द इंटरव्यू कॉल। सो नंबर वन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका नाम, आपका फोन, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल का जो आपका यूआरएल होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है एड्रेस के नाम पे पूरे घर का एड्रेस लिख देते हैं, रूम नंबर, दिस सिटी, दिस। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एड्रेस में, ओनली राइट द लोकेशन विच सिटी यू बिलोंग टू, करेक्ट। सो देर आर फ्यू मिस्टेक्स जो बहुत बेसिक होते हैं, बट स्टिल पीपल डू, इवन एक्सपीरियंस पीपल डू। देन द स्किल सेक्शन, आपकी कुछ स्किल्स होती है जो सॉफ्ट स्किल्स में आती है, कुछ स्किल्स होती है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स होते हैं। सो आपका स्किल सेक्शन भी बहुत मैटर करता है। डोंट राइट कि वर्ड आता है मुझे, एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है। इफ यू राइट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दैट्स इनफ, राइट। तो कुछ स्किल हम बहुत एग्जैगरेट कर देते हैं, जबकि उसकी जरूरत होती नहीं है। देन प्रोफेशनल समरी, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव या फिर समरी के नाम पे पूरा 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 डेटा चिपका देते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। योर वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपके वर्क एक्सपीरियंस को आपको एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में, क्वांटिफाइड इम्पैक्टफुल वे में, एक्शन ड्रिवन वर्ड यूज करके लिखना होता है। देन राइट टू सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस भी मैटर करते हैं, स्पेशली आपने कोई एआई सर्टिफिकेशन, अपनी जॉब रेलेवेंट अगर आपने कोई एडिशनल स्किल ऐड किया है और उसका सर्टिफिकेशन किया है, तो उसको मेंशन करना बहुत अच्छा साइन होता है। एंड राइट द एक्सपायरी ऑल्सो, अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई एक्सपायरी एप्लीकेबल है तो राइट दैट ऑल्सो। Then your educational background is also important, and you can write the interest, language, all of these things. प्रोजेक्ट वाला सेक्शन उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग लाइक अ कंसल्टेंट, यू आर वर्किंग लाइक अ फ्रीलांसर, सो यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ नॉर्मल रूटीन जॉब, यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस, राइट। आपके असाइनमेंट्स होते हैं, सो इन दैट केस यू हैव टू राइट द project, and any other significant thing that you have done, you can also write that. Now कुछ चीजें हैं बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर वन इज आपकी ईमेल आईडी। कुछ लोगों को देखा है बहुत फूल ढूंढ करके, फूल पूजा करके ऐसे ईमेल आईडी बनाते हैं, और वही ईमेल आईडी को अपने इंटरव्यू में लगा देते हैं। बट always remember, the HR, not always, each and every HR is a good human. कुछ HR प्रोफेशनल्स बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, उनको अगर आपका ईमेल आईडी भी अच्छा नहीं लगाना, तो भले ही वो आपको हायर कर ले, हायर तो नहीं करते जनरली, ऐसा नहीं, आई कांट से कि दे वोंट हायर, बट इट डजंट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, इट डजंट गिव अ गुड इम्प्रेशन। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को शॉर्टलिस्टिंग के लिए ईमेल लिख रही हूँ जिसका नाम है फूल पूजा करके, नो। सो ऑलवेज मेक श्योर आपका नाम, आपका सरनेम एंड @ आपका जो प्रॉपर आपका जो ईमेल आईडी है, इट शुड लुक प्रोफेशनल। एंड इफ इट इज नॉट, प्लीज क्रिएट ईमेल आईडी जो कि प्रोफेशनल है, और उसको ही आप अपने इंटरव्यू में यूज करो। देन स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर, बहुत टाइम मैंने देखा है कुछ लोग अपना जो रेज्यूमे वगैरह है वर्ड में बनाते हैं, या फिर कहीं पे भी आप बनाते हो, तो आप पूरा प्रूफ रीड नहीं करते हो, और कुछ एरर्स रह जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं। अब क्या होता है, जब आपका सीवी किसी मैनेजर के पास जाता है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, और उसने अगर आपकी मिस्टेक को फाइंड आउट कर लिया, तो वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन नहीं होता। वाई? बिकॉज सी, मैं किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाने वाली हूँ, और उसके एक पेज के डॉक्यूमेंट में ही मुझे 10 गलती मिल रही है,
तो मुझे लगेगा यार ये बंदा ठीक नहीं है यार, अपने एक पेज के रेज्यूमे में इतनी मिस्टेक करके बैठा है, तो पता नहीं हायर करने के बाद काम में कितनी मिस्टेक करेगा। यू दैट काइंड ऑफ माइंडसेट नाउअडेज पीपल आर लिटरली वेरी 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 सिलेक्टिव, क्योंकि there are so many people looking out for job, and due to AI or due to any other reason, people are getting so selective. They want almost a perfectionist. They want someone who can do everything without any mistakes. And this is what I'm saying based on my personal experience. And after, getting feedback from many HR professionals and people who have been in the CEO position. So वो बताते हैं कि क्या एक इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट में देता देखता है, एंड basis what they actually shortlist a candidate. Okay. Now giving generic summary or objective statement. हमारी आदत होती है, हमने किसी और का सीवी लिया, उसका ऑब्जेक्टिव कॉपी कर लिया अपने में। बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं, स्पेशली इफ व्हेन वी आर फ्रेशर। आजकल तो हम चैट जीपीटी से सब कुछ लिखवा लेते हैं, सब कुछ बनवा लेते हैं। बट योर समरी इज समथिंग कि जैसे ही एचआर के पास जाता है, वो आपके समरी को देख के उसको लगना चाहिए कि यार ये सही पर्सन है, इसका रेज्यूमे को मैं देखूं। समरी मुझे इतनी जेनरिक लगेगी तो मुझे आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इंसान पढ़ता ऊपर से ही पढ़ना स्टार्ट करता है ना। आई टेल यू, वंस आई रेफर्ड सीवी ऑफ वन ऑफ द सीए कैंडिडेट टू माय एचआर, एंड उसको मैंने एक्चुअली पूछा कि 2 हफ्ते बाद पूछा कि आपने उसका सीवी देखा है क्या, मेरे फ्रेंड का जिसका मैंने रेफर किया। व्हाट शी सेड टू मी कि मैंने उसका सीवी नहीं देखा, मैंने बाहर से देखा, उसने बहुत जॉब स्विच किया हुआ था, मैंने अंदर नहीं पढ़ा कुछ भी। कैन यू इमेजिन? एंड दैट पर्सन वाज वर्किंग इन ईवाई, मतलब जिसका सीवी मैंने भेजा वो इंसान इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, बट स्टिल उसका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं किया, क्योंकि उसका जो ओवरऑल सीवी का स्ट्रक्चर एंड व्हाट द काइंड ऑफ इंप्रेशन शी गॉट, शी डिडंट फील लाइक कि मुझे इसको देखना है और इसको प्रोसेस करना है। सो ऐसा होता है। देन यूजिंग फैंसी टेम्पलेट, आजकल हम लोग है ना बहुत ज्यादा कैनवा में टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। हमको लगता है कि यार चलो यार ये टेम्पलेट्स बहुत अच्छी लग रही है, लेट्स यूज दिस टेम्पलेट। बट वी फॉरगेट दैट all the templates are not ATS optimized. ATS is a software, and if software cannot read your resume in a proper manner, it will reject your resume. So your resume will never reach to the HR. So instead of focusing on very fancy resumes which you are getting online या फिर Canva में जहां पे भी आपको मिल रहा है, focus on the content inside. The presentation could be simple, but what you are mentioning, what you are including, the kind of value you are including in your resume, that is what matters most. And the keywords तो बहुत ज्यादा important होते हैं। Even when we prepare the resumes of our candidate, of our client actually, we take care of mostly the keyword and the overall formatting of the resume. Then making it too long. मैंने देखा है कुछ लोग 2-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, बट देयर रेज्यूमे इज 4-4-5-5 पेज। नाउ इमेजिन, इवन आई यूज्ड टू थिंक यार इंसान ने 2 साल में कितना काम कर लिया होगा कि उसका रेज्यूमे 5-5 पेज जा रहा है। Are you writing each and every task you are doing in your company in the form of resume to make it like big enough कि मैंने इतना ज्यादा काम किया है? If you are doing something like that, please stop doing it. Because they are not sitting there to see कि आपने कितना ज्यादा काम किया है. They are sitting there to see कि आपने कितना impactful काम किया है, right? So do not make your resume too much lengthy. Try to keep it as short as possible. Especially if you are a fresher, please try to keep your resume one pager. One pager resume is enough. You do not need to include any experience. आपके पास experience नहीं है. They understand. So do not include anything जो आपको लगता है कि यार ये भी include कर लूँ, वो भी include कर लूँ. You don't need to do all of those things. Okay? It's okay to have a short resume. Then missing keywords. Okay, there is power cut. I hope थोड़ा अंधेरा आ रहा है, right? It's okay. Okay, you guys can see, right? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा लाइट का इशू होगा because there is power cut, but I hope everything is good. Okay. Then missing keywords from the job description. I will tell you, when we prepare the resume for our clients, होता क्या है? We take actually 3 or 4 JDs from them.
देयर बेस्ट जेडी जो उनको लगता है कि ये हमारा ड्रीम जॉब है, एंड बेसिस दैट वी कस्टमाइज देयर रेज्यूमे. So whenever you are preparing your resume, make sure you are including those rich keywords that are getting shortlisted or being scanned by the ATS software, so that आपका shortlisting हो. Now someone will have, you might have a question कि यार हमने ये चीज किया नहीं रहता है, कंपनी में तो कुछ ऐसा रहता है जो हमने किया नहीं रहता है. तो क्या हम हर एक कंपनी के लिए अलग जेडी बनाते बैठे? प्रोबेबली मैक्सिमम आजकल लोग 2 से 3 रेज्यूमे बना लेते हैं, फिर भी 2-3 वेरिएशन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट के लिए बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई टेक माई एग्जाम्पल. इफ आई एम अ सीए एंड आई एम अप्लाइंग फॉर द फाइनेंस कंट्रोलर जॉब, आई विल प्रिपेयर वन वर्जन फॉर फाइनेंस कंट्रोलर. फिर मुझे चाहिए कि मैं एफपीए भी एक प्रोफाइल है उसके लिए भी बना लूं, उसके लिए भी मैं एक वर्जन बनाऊंगी. बट नाउ व्हाट विल हैपन, अब अगर हर एक ही रोल के लिए आप नया वर्जन बनाते जाओगे, यू विल बी कंफ्यूज्ड. फिर जब एचआर का कॉल आएगा, यू विल बी एक्चुअली थिंकिंग कि ये वाले रिज्यूमे मैंने ये लिखा था, और इसके बेसिस पे जब आपको आंसर पूछेंगे ना, तो आपने कुछ चीजें ऐसी लिखी होगी जो आपने की ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है. And then it will trigger you. It will lead you to the rejection. So always maximum go for maximum 2 to 3 version. I would suggest not more than that. And be clear with what you are including. Never write anything that you have not done. आप थोड़ा exaggerate कर सकते हो, but make sure you have done enough research about that कि उसमें से अगर कुछ question आए तो आप उसको confidently answer कर सकते हो. So that's the one way to use the keywords from your JD, but still trying to be authentic. Okay. Now then, not quantifying result or number. So होता क्या है? Many time people include their experience, but they don't quantify the impact. Now, considering one example, for example, आपने team तो handle की है. So you write, I have handled team, but you didn't write how many people were there. Have you handled the team of 5 member, 10 team member, or whatever? Don't write handled. You have managed. So there are some words that actually matter a lot. You don't have to just uh, tell. You don't have to just write what you have done. You have to, mention in a way that shows that you have actually created an impact. आपकी वो leadership है ना, आपके resume में reflect होनी चाहिए. Then outdated or irrelevant information. So many times what happens, हम हमारा experience 10 साल का है, okay, and now I'm applying for the director role. And what I'm including in my resume कि मैंने अपने college में volunteer किया था and I got awarded for that. To be honest, to my interviewer at this level, it doesn't matter मैंने अपने college में, school में क्या किया है. Even as intern मैंने क्या किया है, उनके लिए वो चीज मैटर नहीं करती है, because they are hiring me for a leadership role. So many people I have seen, they include so many redundant information which is not required, and that's how उनका जो CV है वो काफी lengthy हो जाता है, and at the same time it is difficult to get shortlisted. ओके. सो बिफोर एंड आफ्टर हम देखते हैं. पहले हम देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स जनरली करते हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव में हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट ओके, ऑब्जेक्टिव एंड समरी इज वन एंड द सेम. जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो आप समरी वर्ड लिखते हो, बट व्हेन यू आर अ फ्रेशर यू राइट ऑब्जेक्टिव. तो एक बहुत जेनरिक ऑब्जेक्टिव आपको अवॉइड करना चाहिए. इट शुड बी इन अ वैल्यू ड्रिवन टोन, लाइक रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग ग्रेजुएट और मार्केटिंग प्रोफेशनल. So that's how your tone should differ. Then experience, यहाँ पे you are just listing down various tasks कि आपने ये किया है, but here you are actually quantifying the impact कि आपने manage किया है इतने accounts, this much you have provided the engagement. यहाँ पे आपने outcome भी बताया है कि आपके काम की वजह से क्या outcome हुआ. If you are in the sales, if you are a sales candidate, so you can write, okay, due to whatever you include, you can, okay, मुझे अभी राइट एग्जाम्पल नहीं आ रहा, बट यू कैन डेफिनेटली राइट लाइक, ओके, इंक्रीज्ड सेल्स बाय 20% और समथिंग लाइक दैट, राइट, रिलेटेड टू योर प्रोफाइल. देन ईमेल आईडी में जैसे हमने बोला कि कूल डूड 99 और समथिंग लाइक दैट, अवॉइड दीज very fancy email IDs. Use professional name and surname email ID. It's a very simple thing. अगर आप जब कंपनी में ज्वाइन होते हो तो कंपनी भी आपको ऐसा ही ईमेल आईडी देती है with their own
company domain name. Then 3-page resume with fancy graphics. Lot of people use lot of colors in their resumes. बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं, वेरी फैंसी फॉन्ट यूज करते हैं, 3-3 पेज का रेज्यूमे होता है. अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यूज सिंपल फॉन्ट जो भी होता है, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल. दीज आर वेरी बेसिक एंड प्रोफेशनल फॉन्ट्स दैट यू कैन यूज. And try to keep your CV maximum limited to 1 page. No numbers, no result. But in a right CV, there is always the number and the result. Okay. Now here I'm giving you one sample CV, and you have to mention 2-3 mistakes that you can figure out. So you can write in the chat box. I will see your कितने अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो. Okay, let me turn on my chat section. Okay. क्या क्या गलतियां आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो? ईमेल, गुड. एंड व्हाट एल्स? 2-4 भी बताया तो काफी है. वैसे तो 2-4 से ज्यादा ही है. स्टार्ट टू एंड इफ यू रीड ना, यू विल गेट टू नो. ऑब्जेक्टिव, यस. यस. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जेनरिक है. हम्म. Then one is here, did lot of different tasks, right? He is not quantifying the impact in his role. Correct? So experience is also not right. उसका स्किल सेक्शन भी बहुत जेनरिक है. इट्स नॉट गुड इनफ. बट ठीक है, ये फिर भी ठीक बोल सकते हैं, राइट? बट देर आर टोटल 5 मिस्टेक्स. एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी बेसिक. वन लाइन में ही कुड इंक्लूड की व्हाट ही डिड इन द बीकॉम. हाँ, बीओबी इज ऑल्सो ऑन वेरी टॉप, राइट? ओके, गुड 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 गुड, नाइस. So, okay, so this is one sample I have included. So if you see what is the mistake in this CV, यहाँ पे एक तो आपने अपना फोटो लगाया है, उसमें पीछे बहुत ज्यादा रेड बैकग्राउंड है, राइट? Your professional picture should always have a clean background, not red, yellow, anything like that. Okay. Again, mentioning that you are an immediate joiner, that's a big blunder. लोग जानते हैं कि आपको जॉब की जरूरत है. यू कैन mention this fact on the call with HR, but don't write in your resume that you are an immediate joiner, because उनको लगता है कि आप बहुत desperate हो join के जॉब के लिए. So avoid doing these mistakes. Then again, आपका एड्रेस पूरा लिख देना, that is also wrong. Do not write your full address. Only write your email ID, location, and contact number. Professional summary is very long. You should write an impact-driven, value-driven professional summary. और 2 से 3 लाइन में आपकी प्रोफेशनल समरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो इफ यू सी, यहाँ पे ये पूरा है ना, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है, करेक्ट? इट इज नॉट जस्टिफाइड. इफ यू सी हियर, द एंड्स आर वेरी क्लियर, वेरी प्रोफेशनल. जो कलर भी इसमें यूज किया है, इट्स अ नेवी ब्लू कलर, सो इट्स लुकिंग वेरी professional and aesthetic. But at the same time, the fonts that you see are not easily readable. It's not looking that much readable and clear. But if you see here, it's very easy to read. Also, key skills हमने यहाँ पे भी include किया है, but यहाँ पे भी include किया. But if you see the skills, how I have categorized the skills in different section, and then I have mentioned. So it is very easy for the HR और द इंटरव्यूअर टू एक्चुअली सी कि उनके काम का स्किल मेरे पास है या फिर नहीं है. ओके. ऑल्सो द कोर कॉम्पिटेंसी सेक्शन इज important when you have worked in a company in past, but if you are a fresher, then you might not have the core competency section, and that's completely okay. So that's just half of the CV. ये काफी बड़ा CV है, almost 2 page का है, not that much long, but this was quite 4 page. So these are the some things, few things that you need to take care of. I have not included full screenshot, वो बहुत ज्यादा हो जाता, but just for you to get an idea. Okay. Now let's move to the LinkedIn profile section.
लिंक्डइन प्रोफाइल काफी लोग पूरी तरह से इग्नोर करते हैं बिकॉज उनको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, बट द लिंक्डइन प्रोफाइल nowadays plays a major role because this is the place where actually your recruiter checks whether you are a genuine person or not. अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने बस एक अकाउंट खोल के छोड़ दिया है, इट मीन्स स्पेशली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑन लिंक्डइन, और अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही बेसिक है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे. मोस्टली रिक्रूटर शॉर्टलिस्ट योर प्रोफाइल इफ दे आर एबल टू सी दैट यू आर मैचिंग देयर रोल. Correct. So 87% recruiters use LinkedIn to source candidate. So if you might have used LinkedIn so far to get a job, आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई न्यू जॉब पोस्ट हुआ, within one day 100 plus applications आपको देखने मिले, 100 plus people applied already, right? So you can imagine how many people are there who are fighting for the same profile. Now द सेकेंड मिस्टेक व्हाट वी डू कि हमको लगता है हमने इजी अप्लाई पे क्लिक कर दिया और हम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम if you have easy apply option, if you are, it means you are trying to get into a low effort mode. So if you have an option to apply through the career portal of the company, use that mode. Probably you have the chances of getting shortlisted more in that case. Okay. So किसी ने अप्लाई किया है, लिंक्डइन यूज किया है किसी ने अभी तक जॉब के लिए? कैन यू रेज योर हैंड? हेलो, कैन यू रेज योर हैंड? नहीं यूज किया क्या किसी ने भी? आई एम जस्ट चेकिंग माय चैट बॉक्स. ओके. अच्छा, तो मोस्टली आप लोगों ने यूज किया होगा, थोड़ा बहुत भी यूज किया तो आई थिंक दैट्स फाइन. फ्रेशर लेवल पे मोस्टली लोग नौकरी पे ही जॉब सर्च करते हैं, बट दैट्स फाइन इफ यू हैव यूज्ड वंस आल्सो. Okay, then 40 million job search happen on LinkedIn every week. Let me tell you, जो भी आजकल रिक्रूटर्स होते हैं ना, जितने भी रिक्रूटर्स हैं, वो सबसे पहले लिंक्डइन पे ही अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं बिकॉज वहां पे उनको इंटरनल रेफरेंसेस काफी मिल जाते हैं. देन दे गो टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि नौकरी.com या फिर दूसरे भी जो भी जॉब पोर्टल्स होते हैं या फिर हायरिंग एजेंसीज होते हैं, उनके थ्रू अप्रोच करते हैं. बट लिंक्डइन इज समथिंग वेरी इजी टू एक्सेस एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर देम एज वेल. नाउ 3 times more you will get hired with a complete profile. Why am I saying this? Because now imagine you are the recruiter and आपको 100 लोगों ने अप्लाई किया, ओके, और 100 में से 10 लोग हैं जिनकी प्रोफाइल पे आपको जाके लग रहा है कि ओके इसका एजुकेशन ये है, इसने ये काम किया है, उसको आपकी सीवी में जो जो चीजें चाहिए आपके प्रोफाइल में ही मिल गई है. तो डोंट यू थिंक दैट पर्सन विल एक्चुअली शॉर्टलिस्ट यू? Yes, definitely, because उनको वही चाहिए. So it's very important that you take care of your LinkedIn profile very well and do not ignore it. Okay. 500 प्लस कनेक्शंस जैसे होता है ना इंस्टाग्राम पे, यार जितने फॉलोअर्स रहेंगे उतना अच्छा लगता है लोगों को बताने में. सिमिलरली ये भी होता है कि आपके अगर प्रोफाइल में 500 प्लस कनेक्शन है, इट लुक्स लाइक इट्स अ स्टेबल प्रोफाइल एंड काफी टाइम से लिंक्डइन पे है. नाउ लिंक्डइन प्रोफाइल की कुछ चीजें हैं दैट यू रियली नीड टू वर्क ऑन जब आप अपने लिंक्डइन को रिवैम्प करने जाओगे. नंबर वन, प्रोफेशनल फोटो. आपका एक प्रोफेशनल हेडशॉट आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल में होना चाहिए. जैसे कि मैंने रेज्यूमे के लिए बताया वैसा ही आपका यहाँ पे भी आप सेम डीपी यूज कर सकते हो. In case of resume, it's optional to include your picture, but in case of LinkedIn, you should definitely include your picture. Whether you feel like I have a good face or not, please don't think in that manner. On LinkedIn profile, it's important that you include your pictures so that people can see who is the person behind this profile. Second, compelling headline. आपका जो headline होता है ना आपके प्रोफाइल पिक्चर के नीचे, उसको देख के एक्चुअली सामने वाला डिसाइड करता है कि इसको मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूं या ना भेजूं, फॉलो करूं या ना फॉलो करूं, राइट? तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी इम्पैक्ट ड्रिवन एंड आपके अचीवमेंट्स उसमें राइट डाउन होना चाहिए. आपका प्रोफेशनल टाइटल क्या है, वेदर यू आर अ सीए, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल, हुएवर यू आर, फ्रॉम वेयर यू हैव डन, सो राइट अ वेरी गुड प्रोफेशनल टाइटल. अबाउट सेक्शन में आपके बारे में आपको लिखना है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपके कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है. सो इट शुड बी अ वेरी गुड प्रोफाइल, कीवर्ड रिच अबाउट सेक्शन, सो दैट इफ
the recruiter is searching for a particular role about some candidate, your profile is, getting filtered there. Now the experience with impact. Some people I have seen अपने जो LinkedIn प्रोफाइल है वहां पे सिर्फ लिख देंगे ये कंपनी में काम किया है, इतने साल से इतने साल काम किया है, बट दे डोंट राइट व्हाट वर्क दे हैव डन इन दैट कंपनी। तो आपके अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को देखोगे और उसके जो एक्सपीरियंस सेक्शन के नीचे एक पैराग्राफ होता है जहाँ पे बोलता है कि आपने क्या लिखा है, आप अपने एक्सपीरियंस को डिटेल में बताओ। सो यू रियली नीड टू राइट देयर ऑल्सो, सो दैट आपका, बोलते हैं ना, जितना ज्यादा आप अपने कीवर्ड्स को रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपका जो प्रोफाइल है वो एक रिच प्रोफाइल बनेगा और कीवर्ड से ऑप्टिमाइज होकर वो शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस में जाएगा। स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कोई इंसान है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई आपका सीनियर है, वो आपके बारे में कोई अच्छा लिख सकता है, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड यू हैव 2 3 5 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन टेल योर बॉस, योर सीनियर कि प्लीज यार मेरे लिए थोड़े 2 4 लाइन का रिकमेंडेशन लिख लो। उससे क्या होता है ना, जब आपका रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देखेगा ना तो बोलेगा हाँ यार इस इंसान ने इसके साथ में काम किया है एंड दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, तो वो रिलायबिलिटी ट्रस्ट फैक्टर वहां पे बिल्ड हो जाती है। नाउ एक्टिविटी टाइम। अपने अपने लिंक्डइन को खोलो और जस्ट रेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल ऑन 1 to 10 कि कितना आपको उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है या फिर इट्स ओके। सो जस्ट गो थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल स्टार्ट टू एंड, उसको थोड़ा स्क्रॉल करो एंड चेक इफ यू रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। ओके, and these are some of the checklists that you really need to take care of, but if you don't follow this, overall basis पे भी आपको देख के अपने प्रोफाइल को पता चल जाएगा कि हाँ यार मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है या फिर नहीं। ओके, सो दिस इज वन प्रोफाइल जो कि विदाउट वर्किंग this is how it looks, and this profile is of some finance controller. Finance controller is a good position, and this is the LinkedIn profile after optimization. So this is my LinkedIn profile. I have optimized other people's profile also, but I cannot share their profile because due to the client confidentiality, but this is definitely something that I can share. So if you see my background, this cover is very professional. My picture is very professional. My headline is very clear, very keyword rich, what work I have done in the past, like when I was working as a CA in corporates. So you will see my about section, everything was very clear. Nowadays, I'm not using this. So you might find it not up to the mark, but till that time I was working in the corporate, my LinkedIn profile used to be top notch कि जैसे कोई रिक्रूटर आए तो मेरा प्रोफाइल तुरंत शॉर्टलिस्ट हो जाए या फिर उसको देख के सामने वाले को पता चले कि ओके दिस गर्ल इज समवन हु इज रियली वर्किंग समथिंग गुड। एक चीज और होती है कि जब आप लिंक्डइन में किसी को पर्सनली डीएम करके बोलते हो ना यार अपनी कंपनी में रेफर कर दो मुझे, और आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल सामने वाला विजिट करता है और अच्छा होता है तो उसको एक्चुअली में लगता है कि आपके लिए वो एफर्ट ले। एंड दिस आई एम सेइंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस when I was looking out for a job and I had a really good LinkedIn profile. So some people used to visit my LinkedIn profile and say कि आपका LinkedIn profile बहुत अच्छा है. I will definitely check if there is something that I can, refer to. So this is the kind of impression your LinkedIn profile leaves, especially when you are in a job hunt mode. Okay. Now let's see what are the some of the interview mistakes that you really need to avoid. नंबर 1, नो रिसर्च डन। आप इंटरव्यू देने चले गए बट आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी क्या करती है, उसका आपको जिस रोल के लिए हायर कर रहे हैं उसमें आप क्या काम करने वाले हो। सो मेनी अ टाइम पीपल अवॉइड डूइंग द बैक एंड वर्क। क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा इंटरव्यू दे रहे होते हैं या फिर हमको लगता है जाने दो यार क्या ही पूछ लेंगे। बट एज द इंटरव्यूअर नाउ यू इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ इंटरव्यूअर। अगर आपकी कंपनी में कोई इंटरव्यू देने आ रहा है और उसको आपकी कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, so don't you think you will reject that person even if that person was technically good? Because it shows my attitude. It shows that I am not a person with the good attitude. मुझे actual में job पैसे के लिए चाहिए. I'm not looking out for some value add on. Right? So always do the research beforehand attending any interview. Second, the poor communication. Even if you are technically very sound, but if you are not able to explain your
ideas, you are not able to express yourself in a clear and positive manner, then your interviewer is not going to feel good about you, especially when they are asking a situation based question and you are rambling, you are using a lot of filler words, you don't know from where to start, where to end. This is something that is going to get reflected on the face of your interviewer. वो आपको उसका फेस देख के पता चल जाएगा, यार आई एम डूइंग ब्लंडर. So that's how communication matters a lot. Inappropriate attire, especially now. Sometime I have seen people think यार क्या ही फर्क पड़ता है, ये भी तो फॉर्मल ही है. And actually वो फॉर्मल होता है. But if you see overall basis में, is that outfit, for example, shirt and a trouser, it is formal. But does this fit in the appropriate attire category? क्या मेरे इंटरव्यूअर के लिए वो अप्रोप्रिएट है? मैंने रेड शर्ट पहन के ब्लैक ट्राउजर पहन के मैंने इंटरव्यू दे दिया, इट इज फॉर्मल नो डाउट, बट इज इट अप्रोप्रिएट? रेड शर्ट, आई मीन रियली नो. Correct. So if your interviewer is someone who is coming from a very professionally rich background और वो आपको ऐसे देखता है, तो उसके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिव इंप्रेशन डेफिनेटली नहीं आएगा. So always do your best whenever you are going for the interview. कभी भी किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते हो आपके इंटरव्यूअर के लिए कौन सी चीज मैटर करती है, कौन सी चीज नहीं मैटर करती है. आपका इंटरव्यूअर ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए कम्युनिकेशन मैटर ना करता हो, कपड़े मैटर करते हो. ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए, तो क्योंकि दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं एंड यू डोंट नो हु योर इंटरव्यूअर इज, राइट? So make sure always to be on the safest side by working on all the aspects that are necessary to be on point. Okay. Now, negative body language. If I am your interviewer, I am going to focus more on your body language than your words because I know you can lie. हमको पता होता है as an interviewer कि सामने वाला 100% सच तो नहीं बोलेगा, बट उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये कॉन्फिडेंट है, नर्वस है, झूठ बोल रहा है, क्या है. तो बॉडी लैंग्वेज आपका एचआर जो बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, अगर आपने कभी ऑफलाइन इंटरव्यू दिया होगा या फिर ऐसे इंटरव्यू दिया होगा जहां पे आपका मैनेजर भी है जिसके अंडर आप काम करने वाले हो, एट द सेम टाइम एचआर और 2-3 लोग हैं, तो वहां पे एक इंसान का काम यही होता है कि वो आपके बॉडी लैंग्वेज को नोट करे, राइट? सो बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट. Rambling answer. Again, as I said, sometimes if you are not clear how to answer, you will keep on rambling here and there. कभी ये बोलोगे, कभी वो बोलोगे, कभी फिर से पीछे जाके करेक्ट करोगे, lot of things will keep on happening and you will be like यार मैंने ब्लंडर कर दिया. And your interviewer वो तो सोचेगा यार ये कब अपना मुंह बंद करे, मैं लैपटॉप शट करके इसको भगाऊं. Because people don't have time to listen you. If you are saying something that is not appealing to my ears, I would not love to hear. See, इवन योर इंटरव्यूअर इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 30 मिनट का एक इंटरव्यू लेना ही लेना है, उसको इतने लोग हायर ही करने हैं, सो वो भी अपना जॉब कर रहा होता है. तो वो, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो, आपने उसको फर्स्ट 10 मिनट में उसके दिमाग में क्लैरिटी दे दी है कि आप मुझे हायर करो या ना करो. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वो जो फर्स्ट 10 मिनट्स है ना उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि वो 10 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेगा इसको लेना है कि नहीं लेना. उसके बाद का जो टाइम है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. टू बी ऑनेस्ट, आपके लिए वो मैटर करता है, बट वो इंसान अपना टाइम यूज कर रहा होता है 30 या 40 मिनट का, जो भी उनके कंपनी का टाइमलाइन होता है इंटरव्यू के लिए. ओके. ऑल्सो आस्किंग नो क्वेश्चन. सम पीपल डोंट आस्क एनी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू. आपके इंटरव्यू ने पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर लाइक नो आई एम गुड. It means you are not well prepared. It means you are not interested for the role. They actually want that you ask them question, and not only question but a meaningful question कि उसको भी आंसर करने में अच्छा लगे. For example, इंटरव्यूअर ने स्टार्टिंग में ही आपको अपने बारे में बता दिया और आप लास्ट में उनको बोल रहे हो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट यू. तो उसको लगे यार पूरा बताया तो था इसको. So even if you are asking question, you are not making any sense to him just for the sake of answering something, questioning something. You a question, आपने question तो पूछ लिया, but is this something that he is happy to answer? If the answer is no, please don't ask such question. आप चैट जीपीटी से जहां से भी आपको लगे कुछ मीनिंगफुल 2-3 क्वेश्चंस अपने दिमाग में ऑलवेज रखो. एंड मोस्टली आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रोल.
related to the company, related to how it will help your career in the long term, right? So these are the best questions to ask in an interview anytime. Now let's have one more activity. यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इट्स अ सिनेरियो दैट यू हैव टू रीड एंड आपको बताने का है कि इसमें मिस्टेक कौन सी है. ओके, सो Yeah, that's प्रिया fine. अराइव्स. To interview in black jeans and a t-shirt and a short. The interview won't notice Hello, it. can you please keep yourself on mute? Okay, so I'll read the para and then you have to find out the mistake. Okay, Priya arrives 5 minutes late to her interview wearing black jeans and a shirt, thinking interviewer won't notice it as it's black. She hasn't researched the company. When asked, tell me about yourself, she talks for 8 minutes. When asked about her weaknesses, she says, I don't really have any major weaknesses. I am a perfectionist. She doesn't bring a copy of her resume at the end. When asked if she has a question, she says no. No, I think I am good. She sends no follow-up mail. So what are the mistakes that you could notice here? Let me know in the chat box. मुझे तो बहुत सारी लगी, to be honest. Yes, you will get note of, or you won't get this PPT, but you will definitely get one resource. One PDF that I will share with you, it will have everything first. Okay. Late for the interview, don't wear formal clothes. Correct. 6. Yes. She didn't ask any question. है ना? सीवी का कॉपी भी नहीं लेके आई, एक प्रिंटेड कॉपी भी लेके जाना होता है हमको. दैट इज ऑल्सो नॉट देयर. उसको लगा कि ब्लैक जींस पहना, इंटरव्यू को पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लैक जींस में तो पता नहीं चलता वेदर इट्स अ ट्राउजर और जींस. दैट इज ऑल्सो मिस्टेक. देन टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आपको 1 मिनट के अंदर बोलना रहता है और वो 8 मिनट तक अपने बारे में बताती रही. राइट. When they asked her about her weaknesses, she's saying that I'm perfect. I don't have any weakness. So we all have we all have some of the other weaknesses. So there are a lot of things I could notice, and you guys also could notice. Don't prepare, will also don't research. Yes, she didn't research about the company also. So many things are there. Correct. Good. There are so many mistakes we could spot. Anyways, good try. Now let's move to the grooming and hygiene part. So for men and for women, there are few things that definitely differ. So for men, we will cover first well-fitted formal shirt and a dark formal trouser. Okay. So a simple rule, always remember, mostly opt for the professional and neutral tones, जैसे कि white, black, brown, navy, beige. All these colors are professional colors and neutral colors. Avoid wearing like red, green, printed, बहुत flower print वाले shirts या फिर very loose shirt या फिर crumpled कपड़े. Avoid all of these things. In case of women also, take care of the colors, as I said, for the men. Even if you're wearing sari, salwar suit, make sure it's on a professional note. Cotton kurta या फिर plain kurta, not something like very bright color का, बहुत embroidery वगैरह है, या फिर it's too loose, too sleeveless. Avoid all of these things. Then polished formal shoes with a socks matching trouser color. I have seen some people wear green color socks with a black trouser और ब्लैक शूज. उनको लगता है कि यार नीचे कहाँ ही देख लेंगे, बट सम टाइम जैसे ही आप अपने पैर को फैलाते हो नीचे जब बैठते हो और क्रॉस लेग करते हो, तो वैसे ही वो जब कलर जो एक अलग कलर होता है, स्पेशली ब्लैक ट्राउजर के ऊपर आपने व्हाइट सॉक्स पहन लिया, तो द जनरल रूल इज आपका जो ट्राउजर जिस कलर का है उसी कलर का आपका सॉक्स होना चाहिए. बट इफ इट इज अदर कलर, नॉट द मैचिंग और नियर बाय कलर, वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू. So in interview, especially avoid this blunder at any cost. Okay. Then conservative tie. If you're not wearing tie, that's okay. But if you're wearing a tie, make sure it's not red tie, green tie, printed tie, flowery tie. Go for a simple plain tie, which is matching with your blazer color or your shirt color. Then clean trimmed nails and hair. In case of men,
द बेसिक हाइजीन मैटर्स अ लॉट, जैसे कि आपके नेल्स, आपके बाल कैसे हैं. सम पीपल हैव वेरी बिग बियर्ड, ऐसे लगता है कि बहुत हम कूल डूड वाले लुक में हैं. If you are going for the interview, please get out of this cool dude image. Just try to be professional, because they are not there to hire any actor or any, they are not taking any audition. They are there to hire a good professional for their company. The light or no profile. What happens when perfume? What happens many a time, कुछ लोगों को परफ्यूम बहुत पसंद होता है. So आपको अगर बहुत पसंद है तो आपने तो बहुत परफ्यूम लगा लिया, but there are people who are allergic to it. So if your interviewer is someone who is allergic to a perfume, या फिर उसको वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, तो वहां पर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा. आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जहां पे आपके इंटरव्यूअर को कोई भी नेगेटिव वाइब हिंट आपसे मिले. सो अवॉइड डूइंग ऑल दोस ब्लंडर्स. एट द सेम टाइम, इफ इट्स वेरी बहुत गर्मी का सीजन होता है, या फिर समटाइम्स सम पीपल रियली हैव बैड ओडर प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यू हैव टू डेफिनेटली यूज अ परफ्यूम, बट इन अ वेरी मिनिमलिस्ट वे. सेम इन द केस ऑफ वुमेन ऑल्सो. And minimal accessories. Some people, I have seen, बहुत मोटी मोटी चेन पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी घड़ी पहन लेते हैं, बहुत ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं दादागिरी करने. बट प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स. if you want to look really professional, wear a good professional watch. I'm saying for the men, it's done. It's more than enough for you. A good trouser, shirt, and a good watch, good footwear, and you are done for the day. Good neat hair, bus. For women, definitely go for a natural, no makeup look. Don't think that I'm very beautiful whether I do makeup. No, I don't do makeup. I will anyways look beautiful. No, you don't need to do all of these things. Please always try to match the energy of your face with the energy of your outfit. So if you're wearing really very good clothes and you are not putting out little bit of makeup even, then probably your energy of the face is not matching with the outfit energy. And when people talk to you, they are looking at your face, not your outfit. So it's very important that your overall harmony is there. Okay. Let me check. Okay. Take it. Then, okay. So that's a perfume, same thing for men and women both. Let's move to the next slide. I think my screen is raised. वर्चुअल इंटरव्यू कितने कितने लोगों ने दिया है? किसने किसने दिया है वर्चुअल इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू जिसको बोलते हैं हम? एनीवन हियर? ओके. आजकल तो सब इंटरव्यू ऑनलाइन ही होते हैं. चलो, तो अगर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं दिया है, या फिर अगर आपने पहले दिया भी है, तो भी आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स आपने आपने ऑलरेडी किया है, या फिर अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज यू डोंट हैव टू डू इट इन फ्यूचर. ओके. नंबर वन इज बैकग्राउंड. आप ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हो जहां पे पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, कबर्ड खुला हुआ है, टीवी चल रही है, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज. ऐसे बैकग्राउंड को अवॉइड करना है, बिकॉज दिस विल डिस्ट्रैक्ट योर इंटरव्यूअर. सो हमको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे हमारा इंटरव्यू खराब जाए. ओके. सो मेक श्योर योर बैकग्राउंड इज वेरी नीट एंड क्लियर. सिंपल वॉल इज ओके. देन द लाइटिंग मैटर्स. आपका फेस पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए. ट्राई टू सिट नियर बाय सम विंडो, या फिर घर पे लाइट्स हैं तो वो ऑन कर लो, या फिर एक छोटी सी रिंग लाइट आती है उसको परचेज कर लो, so that the lighting is good. Always opt for a good light. Ring light काफी सस्ती होती है, so you can get it if you don't have a good lighting around you. But otherwise, if you have a setting like where natural lighting is good, then you really don't need to buy anything. Then camera and eye contact. मेरा कैमरे पे फेस दिख रहा है, बाकी मेरी पूरी 60% एरिया इज कवर्ड विथ अ फ्लैट वॉल. नाउ इमेजिन अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ, आप इंटरव्यूअर हो और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा फेस सिर्फ इतनी एरिया में दिख रहा है, बाकी में पूरा वॉल दिख रहा है. विल इट लुक गुड? नो, नॉट एट ऑल. वो आपको नहीं बताएंगे. आपका योर इंटरव्यूअर इज नॉट गोइंग टू से कि यार ये क्या है, ठीक से अपना कैमरा तो ठीक कर लो. दे आर नॉट गोइंग टू टेल दैट. बट उनके दिमाग में रहेगा क्या यार, इसको तो कैमरा भी नहीं ठीक से बैठाने आता. सो अवॉइड दोज थिंग्स. ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो आई कॉन्टैक्ट और जो आपका जो कैमरा है
वो बहुत पैरेलल है। देन अटायर मैटर्स अ लॉट। कुछ लोग घर घर पे इंटरव्यू देते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ शर्ट पहन लिया तो चलेगा, कौन सा नीचे देखने वाले हैं। बट ऑलवेज वेयर फुल फॉर्मल क्लोथ्स बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट इन योर एनर्जी एंड एटीट्यूड ऑल्सो। एंड ऑल्सो इफ ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, अगर आपको उठ के कुछ करना पड़ गया, कोई आ गया, किसी ने रिंग कर दिया, नो आपको दरवाजा खोलना पड़ गया, whatever you need to do, अगर आपको उठना, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि यार ये फुल प्रोफेशनल अटायर में नहीं है। दिस आई हैव सीन इन पास्ट पीपल डूइंग दिस ब्लंडर्स एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, स्पेशली लड़के ये गलतियां बहुत करते हैं क्योंकि उनको लगता है यार शर्ट पहन के बैठ जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा देखने वाले हैं। ओके, देन ऑडियो एंड टेक इशू। ऑलवेज ज्वाइन योर इंटरव्यू बिफोर 15 मिनट्स, बिफोर टाइम, सो दैट वो जो आप एक्स्ट्रा 15 मिनट आपके पास जो होता है ना आपके इंटरव्यू के पहले, उस टाइम पे आप अपना ऑडियो वीडियो, आपका जो टेक्निकलिटी वाला जो पार्ट रहता है सब कुछ चेक कर सको, आप अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर सको। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ज्वाइन बिफोर द टाइम। ओके, देन ठीक है, नाउ वी विल मूव टू ईमेल एंड टेलीफोन एटिकेट। कितने लोगों को जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो उसको बहुत ऐसे डेस्परेट फील होता है कि यार ये कॉल आया, कॉल आया, कॉल आया। ट्रैवल करते हो तो भी उठा लेते हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो तो आपको लगता है नहीं नहीं बात कर ही लो, पता नहीं यार फिर आया ना आए। ऐसा हुआ है कभी? मन में लगता है ना यार ये अपॉर्चुनिटी चली चली ना जाए, इसलिए चलो यार बात करते जाते हैं। किसी के साथ हुआ है कि आपने कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आया और फटाफट उठा लिया जबकि वो राइट प्लेस राइट टाइमिंग नहीं था? आई बिलीव काफी लोग के साथ में हुआ होगा। सो कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग वाया ईमेल और वाया टेलीफोन। सो लेट्स सी फर्स्ट द ईमेल पार्ट। सब्जेक्ट लाइन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ मेल टू एचआर प्रोफेशनल और टू एनीवन ऑन दिस प्लैनेट। ओके, सब्जेक्ट लाइन पढ़ के ही सामने वाला डिसाइड करता है कि इस ईमेल को मुझे ओपन करके रीड करना है या फिर नहीं करना है। सो मेक श्योर योर सब्जेक्ट लाइन इज वेरी क्लियर एंड प्रोफेशनल। देन सैल्यूटेशन, जिसको हम ग्रीटिंग बोलते हैं, ऑलवेज राइट डियर, हाय, वट एवर फॉर्मेट यू फॉलो। जनरली डियर लिखा जाता है इन केस ऑफ प्रोफेशनल ईमेल। And if you're writing someone for the second or third time, then you can also write good morning. Hope you are doing well. Hope you are having a great day. So ऐसे सब भी sometimes people write. I also write. I personally like greeting in that fashion. Opening line is when you start writing the main body of your email. हम एचआर प्रोफेशनल को मेल लिख रहे हैं जॉब के लिए, हमको किसी ने रेफरेंस दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो फर्स्ट लाइन में आपको मेंशन करो कि आई गॉट रेफर्ड बाय दिस पर्सन एंड दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस रोल। आप उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, व्हाई यू आर द राइट फिट फॉर द रोल, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। बहुत लेंदी ईमेल नहीं होना चाहिए आपका जो जॉब एप्लीकेशन ईमेल होता है, बट इट शुड बी रियली समथिंग दैट कि मैं बीइंग द एचआर प्रोफेशनल आपके ईमेल देखो, मैं देखकर मैं डिसाइड कर सकूं कि ओके मुझे ये सीवी को कहीं फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही हाई करके आई एम अटैचिंग द सीवी फॉर द जॉब करके आपने अटैच कर दिया, तो आपका ईमेल देख के मुझे लगेगा यार ये कैसा बंदा है, इसको तो प्रॉपर ईमेल भी लिखने नहीं आते। देर आर चांसेस दैट आई विल नॉट इवन ओपन योर सीवी। करेक्ट, सो यू हैव टू अवॉइड डूइंग दिस ब्लंडर्स। इट्स वेरी बेसिक थिंग। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को रूइन करती हैं, और वही चीजों का हमको ध्यान रखना। नाउ द क्लोजिंग एंड साइन, वार्म रिगार्ड्स बोल के हमने अपना नाम लिखा, दैट्स नॉट समथिंग। आप अपना नाम लिखो, उसके बाद में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी लिखो, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक अटैच करो। दैट्स हाउ यू डू अ प्रॉपर क्लोजर। ओके, देन दिस इज अ सैम्पल सीवी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। सो इसमें क्या मिस्टेक दिख रही है, कोई बताएगा मुझे एक दो मिस्टेक दैट यू कैन सी? ऐसे ऐसे ही ईमेल आईडी लोग लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे ही लोग लिखते हैं ईमेल्स, स्पेशली फ्रेशर्स तो ऐसी ही हरकतें करते ही करते हैं। ओके, आई एम ओपनिंग माय चैट सेक्शन।
स्मॉल आई है बराबर वेरी गुड. व्हाट एल्स? रीडिंग गलत है, आई करके लिख दिया है, नाम भी नहीं लिखा है ना. प्रोफेशनल है तो डियर लिखना चाहिए. तो चलो हाय लिखा तो भी सामने वाले का नाम तो लिखते ही है अपन. टेक्स्ट शॉर्ट थैंक्स को देखो कैसे लिखा है, जैसे लग रहा है व्हाट्सएप मैसेज में लिखा है ना. और क्या है? और बहुत ऐसे आई एम को देखो कैसे लिखा है, आई एम अ फ्रेश ग्रेड. ग्रेड को ग्रेजुएट भी नहीं लिखा है प्रॉपर. राइट. लुक्स लाइक अ कैजुअल टेक्स्ट मैसेज. राइट, ऐसा लग रहा है कि हम व्हाट्सएप पे किसी को, अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं. सो दिस इज रियली रॉन्ग. यू हैव टू अवॉइड दिस. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द टेलीफोन इंडिकेट. नाउ जब भी आपको एचआर प्रोफेशनल से कॉल आता है, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत डेस्परेट होते हैं जॉब के लिए. आई एम ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, आई एम ट्रैवलिंग इन द बस, या फिर मैं खाना खा रही हूँ और मैंने उसका कॉल अटेंड कर लिया. एंड जब भी आपको एचआर का कॉल आएगा ना, दे जनरली आस्क यू इज इट गुड टाइम टू टॉक. और हम क्या करते हैं डेस्परेशन में, हम बोल देते हैं यस यस यस. और फिर जब वो लोग कुछ चीजें पूछने लगते हैं तो हमको लगता है कि यार अरे यार, मैं तो फुर्सत में बात करती तो अच्छा रहता. राइट. So always make sure, if you know this is HR call, then always try to get into a peaceful place and then talk. क्योंकि आपका एक एक आंसर, स्पेशली जो सैलरी निगोशिएशन रिलेटेड आंसर्स होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं. ओके. देन डोंट यूज स्लैंग और कैजुअल लैंग्वेज. आजकल के जो जेंजी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका तो ऐसा होता है, उनको बहुत कूल बनने का बहुत फैशन होता है, बहुत शौक होता है. उनको लगता है कंपनी में भी हम कूल बनेंगे. सो दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड. ऐसे काम नहीं चलता है कंपनी में. इन यू नो, they are not there to see how cool you are, they are there to see how professional, respectful you are. Okay. Then don't say yeah. Some people use really a lot of short words. उनका एनंसिएशन क्लियर नहीं होता है. लेट मी को बोलेंगे लेट मी डू दिस. सो ये सब चीजें आपके इंटरव्यू के टाइम पे नहीं अच्छी लगती है. If you are doing in your casual life, that's okay. But when you are going for an interview, please avoid all these shortcuts या फिर cool words जो होते हैं. Enunciate properly each and every word. Okay. Don't do multitasking during the call. HR के साथ में आप बात कर रहे हो और आप लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो. You are eating at the same time. So don't do these things, because कहीं ना कहीं आपका वो जो कॉल जैसे जितना फ्रूटफुल हो सकता था, वो होगा नहीं. सॉरी. डोंट लेट कॉल गो टू द वॉइस मेल. मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब भी उनको कॉल करो उनका फोन वॉइस मेल पे चला जाता है. ये बहुत अनोइंग होता है. अगर आप अपने जॉब हंट पीरियड पे हो, जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो, उस टाइम पे आप अपने कॉल को वॉइस मेल वाले मोड पे मत रखो. क्योंकि जब भी आपका एचआर कॉल करेगा और आप उठाओगे नहीं, तो वॉइस मेल पे चला जाएगा. और वो एचआर के लिए बहुत अनोइंग होता है. करेक्ट. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप. अगर आपका इंटरव्यू हो गया है या फिर एचआर ने आपको बोला है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो फॉलो अप करो, रिस्पेक्टफुली करो. डोंट साउंड डेस्परेट फॉर द जॉब. थैंक यू बोलो. देन यू स्टार्ट विद द फॉलो अप. मेक द फॉलो प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्ट. Okay, so make sure you don't do all these blunders. Now let's see what are the do's of a good telephone etiquette. Answer professionally. Always start with a proper tone. Hello, कौन है? ऐसे करके नहीं. आदत होती है ना हमको फ्रेंड से ऐसे बात करने. So you don't have to do this. Now when you're talking to HR, make sure you have a smile on face. क्यों? क्योंकि जब हम स्माइल करके एक पॉजिटिव टोन में बात कर रहे होते हैं ना, वो एचआर को आपकी आवाज में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती है कहीं ना कहीं. So always try to start working on your first impression right from the call itself. Okay? Speak slowly and clearly. फटाफट. कुछ लोगों को बहुत फटाफट बोलने की आदत होती है. ऐसे लग रहा है कि यार पता नहीं उनको कौन सी रेस में जाना हो. So if you think you are in that category, please, whenever you get a call from HR, बहुत फोकस्ड वे में सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, और फोकस होके बोलो भी. Your word should be something that HR को समझ में आए कि ये क्या बोल रहा है. ओके. सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दैट. टेक नोट्स ड्यूरिंग द कॉल. अगर आपके एचआर, चलो आपका जॉब लग गया है और एचआर ने आपको बताया कि आपके सैलरी का ब्रेकअप होगा, आपका 20% पीएफ कटेगा, 10% ग्रेचुटी में जाएगा, आपका इतना इंश्योरेंस होगा. लॉट ऑफ ब्रेकअप शी गेव यू, ओके, बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर. एंड हुआ क्या? आपने बोला कि हाँ हाँ सब मुझे याद रहेगा, बाद में आपको याद नहीं है. Then again, if you go and tell your
HR that मुझे याद नहीं है, कैन यू प्लीज टेल मी अगेन दैट ब्रेकअप। उसका एटीट्यूड आप देखोगे, उसका टोन भी चेंज हो जाएगा, एंड कुछ लोग तो आंचल में चुभ जाते हैं, और उसके बाद वो आपको बताएंगे भी ठीक नहीं, और आपको पूछने में भी नहीं अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात तो ये। सो ऑलवेज राइट डाउन, दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीसफुल मैनर में शांति से कॉल अटेंड करो, कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आप इंस्टेंटली राइट डाउन कर लो। काफी टाइम तो हम कंपनी का नाम भी भूल जाते हैं, राइट? किसी के साथ हुआ है कि आपको एचआर से कॉल आया कंपनी का, बट हमको कंपनी का नाम भी भूल गया, फिर बाद में हम उनसे पूछते हैं, अरे आपने कौन सी कंपनी का नाम बता दी। So these are the small mistake that doesn't create good impression. And always confirm करो कि next course of action क्या रहेगा before dropping the call. Okay. Now let's start with the interview mindset and confidence building. Your interview mindset matters a lot. No matter, see, it's not important कि आप technically बहुत smart रहो या फिर soft skill wise भी आप बहुत smart रहो. It's okay. Even if you are above average, you really don't need to be in that best category. Even if you are above average, but a good mindset person, then too you can land your dream job easily. But the thing is, you have to really work on your mindset. So, mindset पे work करना मतलब सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना है। दूसरा, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कुछ लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोगों के ऐसे हाथ पैर ना ऐसे शिवर करते हैं, और ये सब चीजें ना, फिजिकल इंटरव्यू, आजकल तो फिजिकल इंटरव्यू होने लगे हैं, तो वो आपके एचआर जो होती है, जो आप बैठी रहती है आसपास में, वो ये सब नोटिस करती है कि आप कितने डरे हुए हो। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कंट्रोल योर नर्वसनेस, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इंटरव्यू जहां पे भी है वहां पे थोड़ा पहले पहुंचो, ताकि आपको वो टाइम मिले कि आप अपने नर्वसनेस को हैंडल कर सको। कुछ लोग तो इंटरव्यू पे इतने टाइम पे आते हैं ना, ऐसे लग रहा है कि वो एकदम सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंट है, सब कुछ आता ही है, और आके इंटरव्यू में बैठ गए। सो अवॉइड डूइंग दिस मिस्टेक। सो लेट्स सी हाउ यू कैन हैंडल योर नर्वसनेस। नंबर वन, डीप ब्रीदिंग। दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन जो हम हमेशा सुनते रहते हैं। इनहेल एक्सेल करना, 4 से 5 बार आराम से इनहेल एक्सेल करो। I know it sounds really quite funny, but this is something that really works. 4 से 5 बार आराम से अपने ब्रेथ को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप नर्वस होते हो, सबसे पहले आउट ऑफ कंट्रोल जो जाता है आपका ब्रेथ, जो ब्रीदिंग होती है वो होती है। तो ब्रीदिंग आपकी आउट ऑफ कंट्रोल गई, उससे आपके वर्ड्स अफेक्ट होते हैं, बिकॉज वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। सो दैट्स व्हाई वर्क ऑन योर ब्रीदिंग। Second, power pose. When you're sitting for the interview, make sure your hands are probably in this manner. ये कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो उसके वजह से इट समवेयर मेंटली इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर। कीप योर हैंड्स ओपन, डो नॉट डू लाइक दिस, ऐसे हम हाथ बांध लेते ना, डोंट सिट इन दैट फैशन। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कुछ अफर्मेशंस अपने पास में लिख के रखो हमेशा, इंटरव्यू रिलेटेड। आई कैन डू इट, आई बहुत सारे अफर्मेशंस होते हैं, उनको लिख के रखो, और कीप रिपीटिंग दोज अफर्मेशंस बिफोर गेटिंग इनसाइड द इंटरव्यू रूम। ओके। देन विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो अ टेक्निक, कि आप जैसे आपका इंटरव्यू, दूसरे लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, पर आपका तीसरा नंबर है, राइट? तो आप बाहर बैठे हो वेटिंग रूम में, पर वहां पे आप उस टाइम को यूज कर रहे हो टू विजुअलाइज, ओके, आई एम समवन हु इज कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंटली आंसरिंग क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर इज हैप्पी विद मी। सो व्हेन यू विजुअलाइज गुड थिंग, इट समवेयर वर्क्स ऑन योर माइंडसेट लेवल, एंड कभी कभी वो चीजें ना रियल लाइफ में भी काम करती हैं। सी, यू कैन नॉट से कि इस चीज से बहुत आपका फायदा हो ही जाएगा, बट ये जो पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की जो हैबिट्स होती है, वो चीज अगर आपके लाइफ में कंसिस्टेंट है, तो वो चीज आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। सो डोंट टेक इट एज समथिंग वेरी, इट्स नॉट लाइक सम हैक, इट्स अ ट्रिक, इट्स a discipline that you really need to follow. Okay. Then preparation. अगर जो भी इंसान प्रिपेयर होता है ना, उसका 50% नर्वसनेस तो वही चला जाता है। और इट्स सिमिलर टू लाइक गिविंग एग्जाम। अगर आप पढ़ के गए हो तो आप कॉन्फिडेंट हो कि यार जो भी आएगा मैं लिख लूंगी, बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो एग्जाम हॉल में जाते ही आप नर्वस हो जाओगे, पता नहीं क्या आएगा, क्या मैं पास होंगी भी कि नहीं होंगी। दिस इज सेम। सो ऑलवेज प्रिपेयर, इफ यू आर प्रिपेयर्ड योर नर्वसनेस विल बी लो। Nervousness is good no matter what is your experience, because now being nervous means it matters for you.
अगर कोई चीज आपके लिए मैटर नहीं करेगी तो आपको लगे आप उसके लिए नर्वस भी नहीं रहोगे, बिकॉज आपको लगेगा ठीक है ना यार, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। करेक्ट। सो वहां पे नर्वसनेस होगा ही नहीं। बट अगर वो कोई ऐसा रोल है जिसमें आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा रोल है यार, यहाँ पे मिल जाए तो लाइफ बन जाए, उस इंटरव्यू में आप नर्वस रहोगे, बिकॉज दैट मैटर्स फॉर यू। ओके, सो नर्वसनेस इज good. Then arrive early. As I said, if you arrive early, you get time to settle down, to control your breath, to train your mind. So always reach before the time. Then there is a STAR framework that you can follow to answer the tricky question in an interview. S stands for the situation, T stands for the task, A stands for the action, and R stands for the result. Now, how to use this? This framework is generally used in case of सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों से पूछते हैं, बट जनरली अगर आप किसी ऐसी प्रोफाइल में हो जहां पे वो, लाइक इन माय फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर ग्रेजुएशन, दे आस्क्ड मी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सो ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो आपसे पूछेंगे कि नहीं, बट सम इंटरव्यूअर फोकस मोर ऑन सिचुएशन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन rather than टेक्निकल, क्योंकि उनको पता है कि टेक्निकल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा तो यार टेक्स्ट बुक वाला रट्टाफाई क्या होगा, आ जाएगा। बट सिनेरियो बेस्ड पूछा, तुमको पता है कि यहाँ पे इसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सो जब दिमाग लगाना पड़ता है तो आपको ये फ्रेमवर्क यूज करना है। आपको फर्स्ट सिचुएशन बताना है। ओके, like 2 years back, this is what the situation was. I was given a task to post 100 journal entries. करेक्ट। सो आपने सिचुएशन बताया, टास्क बताया, फिर आपने क्या किया, आपसे गलती क्या हुई प्रोबेबली। अगर वो पूछेंगे कि टेल मी वन मिस्टेक दैट यू कमिटेड इन योर लाइफ एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, राइट। सो फिर आपने सिचुएशन बताया, आपने टास्क बताया, देन आपने बताया कि आई पोस्टेड one journal entry in the wrong ledger. This is the mistake. This is the action you did. रिजल्ट, इस एक्शन की वजह से हुआ क्या एंड व्हाट डिड यू लर्न। इस एक्शन की वजह से ये हुआ कि आपको बाद में पता चला कि आपने गलती किया है, आपने अपने मैनेजर से करेक्शन करवाया, एंड उसके बाद में आपने ये स्टेप्स लिए कि आपके साथ में आप वापस उस गलती को ना करो। सो रिजल्ट हमेशा इस चीज से होना चाहिए, एम जो है आपका, कि आपने उससे उस सिचुएशन में सीखा क्या। जनरली अगर इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे वो आपसे कुछ ऐसे पूछ रहे हैं घुमा फिरा के, तो आपको वहां पे ऑलवेज रिजल्ट में ये बताना है कि आपने उस सिचुएशन में क्या सीखा, व्हाट वाज द टेक अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके, देन हैंडलिंग द टफ इंटरव्यू क्वेश्चन। दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, बट काफी टाइम हम यही क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं और उसके वजह से हम रिजेक्ट हो सकते हैं। हमको लगता है हमने बहुत अच्छा आंसर दिया, बट सम टाइम योर आंसर इज नॉट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ these basic questions in a very right manner, so that आप ये छोटे छोटे क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक चीजों की वजह से आपको रिजेक्शन ना मिले। नंबर वन इज टेल अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन देना है। काफी लोग अपना नाम बताते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज दिस, आई डू दिस, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई स्टे हियर, आई हैव दीज मेनी पीपल इन माय फैमिली। जी अगर आप बहुत फ्रेशर लेवल पे तो चलो ये तो फिर भी चल जाएगा, बट जनरली इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस, इफ यू आर 24 25 or whatever, then your introduction should be something that actually lets people know how you are contributing to the company. आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ओके आई माई नेम इज दिस एंड आई प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, ये तो मैं टास्क बता रही हूँ कि मैं करती क्या हूँ। बट इफ आई से कि आई हेल्प कंपनीज टू डिलीवर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाउ यू सी हाउ आई एम एक्चुअली, मेरा सेंटेंस कितना वैल्यू ड्रिवन है। मैं यहाँ पे अपना टास्क नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मैं वैल्यू कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हूँ जहां पे भी मैं जा रही हूँ जॉब के लिए, राइट। सो दिस इज हाउ, दैट्स हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो दैट आपका जो इंटरव्यूअर है उसको एक्चुअली सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि उसने आपका नाम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये वो दुनियादारी उसने आपका ऑलरेडी देख लिया है सीवी में। टू बी ऑनेस्ट, ही इज देयर टू नो समथिंग दैट इज नॉट देयर इन योर सीवी। So draft your introduction from that point of. Okay, what is your weakness? Always share the real weakness, but वो बड़ी वीकनेस नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को लगे अरे बाप रे इसको तो क्या है। अगर आप बोलो कि अरे मेरा मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी हूं मैं,
वो सामने वाला आपको हायर ही नहीं करेगा, वो बोलेगा ये तो शॉर्ट मेमोरी, इसको 2 साल पहले का अगर इसको ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट मांग लिया तो कहाँ से देगा ये, यू नो। सो आपकी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए कि वो वीकनेस तो हो, बट वो वीकनेस होके भी वो एक्चुअली इम्पैक्टफुल ना हो। जैसे आप बोल दो कि आई फील माई वीकनेस इज दैट आई एम टू परफेक्शनिस्ट। सो यहाँ पे सामने वाला, हाँ यार इससे तो अच्छा है, बहुत अच्छा काम करने का इसको कीड़ा रहता है, ना। सो हियर दैट इज नॉट एक्चुअली अ वीकनेस, आई एम ट्राइंग टू बी परफेक्ट, दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। और आपको जब अपना वीकनेस बताओगे, उसके साथ में आपको ये भी बताना है कि आप वो वीकनेस के लिए कर क्या रहे हो, उस वीकनेस से ओवरकम करने के लिए, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू मेंशन। दैट्स व्हेन योर आंसर वुड बी कंप्लीट। Okay, so don't just write, say that, okay, my weakness is this. Also mention what you are doing to get out of that weakness. Okay, then where do you see yourself in 5 years? ये भी बहुत क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टाइम, बहुत बार लोग पूछते हैं। तो आप, I'll tell you one thing, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जनरली आपको जो ऑनलाइन इधर उधर यूट्यूब में मिलेंगे ना, बहुत एक एक पैराग्राफ के आंसर्स रहते हैं, राइट, जो आपको रेडी टू यूज आंसर्स मिलते हैं, जो आपको यूट्यूब में कुछ करियर कोचेस वगैरह देते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आई विल टेल यू, वन ऑफ द इंटरव्यूअर हिमसेल्फ सेड टू मी, इंटरव्यूअर रियली डोंट वांट टू लिसन लेंथी आंसर्स, उनको ऑन पॉइंट आंसर चाहिए रहता है। उनको आप 30 सेकेंड के अंदर में आंसर दे दो, हर एक क्वेश्चन का 30 सेकेंड के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर ऑन पॉइंट होना चाहिए, ना कि पूरा पैराग्राफ होना चाहिए। दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड। और आपको जो मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर आपको जो जनरली यूट्यूब पे मिलेंगे ना, दोज आर एक्चुअली 1 1 पैराग्राफ 2 2 पैराग्राफ आंसर की आप याद भी नहीं कर सकते। तो so better work on those strong on point 1 or 2 liner answers, especially for these are the basic questions जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक इंटरव्यूअर पूछता है, राइट। देन व्हाई शुड वी हायर यू, ये भी बहुत बेसिक है, जनरली कोई ना कोई इंटरव्यूअर पूछता ही। देन व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, दैट इज ऑल्सो देयर। इफ यू आर अ फ्रेशर दे विल नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन। Then this is your 60-second template, and these are the instructions that you have to follow, and you have to create your own introduction. So are you ready to do this, or you can take the screenshot of this screen and you will create your introduction. This is this. Okay. So क्या करना है? Shall I give you time to create your own introduction? या फिर बाद में आप लोग create कर लोगे? Do you want to do it now or later? Tell me guys, I'm waiting for your answer. Then only I will move. Okay, so I am moving. Okay, I believe you are not ready to do this now. Take the screenshot. Okay, screenshot ले लो आप, or basis this draft your introduction. Mostly for mock interviews, when I do for my candidates, तो उनको मैं उनके रोल के हिसाब से सब बेसिक क्वेश्चंस वगैरह जो भी होते हैं उनके आंसर्स हम ड्राफ्ट करके देते हैं, so that it's easy for them. Because sometimes candidates are not able to draft on point 1 or 2 liner answer for them, और वो चैट जीपीटी यूज करके भी वो चीज नहीं कर पाते हैं। That's where we help them. So you try, you can do it definitely. So I'm moving. मेरा स्क्रीन फ्रीज हो रहा है थोड़ा। ओके, सो योर इंटरव्यू, ओके, दीज आर द अफर्मेशंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अफर्मेशंस डेफिनेटली बहुत यूजफुल होते हैं, स्पेशली जब आप काफी नर्वस होते हो, तब ये अफर्मेशन आपको काम डाउन करने में हेल्प करता है। सो रिपीट दिस अफर्मेशंस विथ मी। ओके, वी विल डू दिस वंस। 1 2 3 start. Number 1, I am prepared and preparation is confidence. I bring unique value that this company needs. I deserve this opportunity as much as anyone else. Every question is a chance to showcase my skill. I communicate clearly, confidently, and professionally. I am not just looking out for a job, I am building my career. लास्ट वन तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हमको लगता है कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर बिल्डिंग अ करियर, राइट। यू डोंट ओनली नीड अ जॉब, आपका जो कंपनी है उसको भी लोग चाहिए। तो यहाँ पे हमको लगता है कि हम डेस्परेट हैं, तो जितने हम यहाँ पे जॉब की जितने रिक्वायरमेंट हमको है
उतनी ही रिक्वायरमेंट कंपनी को भी है। सो कंपनी आपको जॉब देके कोई एहसान नहीं कर रही है। ओके, सो दिस इज योर 7 days प्लान। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। सबसे पहले आप अपने रेज्यूमे को ओवरहॉल करोगे, प्रॉपर रेज्यूमे आपको बनाना है। सेकंड, लिंक्डइन प्रोफाइल को आपको प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज करना है। Day 3 पे आपको 3 टारगेट कंपनी आप आइडेंटिफाई करो और वहां पे अप्लाई करो। देन राइट योर स्टार स्टोरीज फॉर कॉमन 5 बिहेवियरल क्वेश्चन, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली वो पूछ सकते हैं, या फिर जो बेसिक क्वेश्चन भी जो हमने देखे हैं उनका जो भी मॉक आंसर है वो प्रिपेयर करके रखो। आई विल टेल यू द टेक्निक दैट आई यूज टू फॉलो। मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जनरल क्वेश्चन के सेक्शन में जितने भी बेसिक क्वेश्चंस एचआर ने जो मुझसे पास्ट इंटरव्यूज में पूछा हो या फिर पूछ सकते हैं, वो सबके आंसर्स एंड क्वेश्चंस लिख लेती थी और उनको अच्छे से मैं पढ़ लेती थी। फिर टेक्निकल क्वेश्चंस का भी एक सेक्शन है जिसमें जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे वो पूछ सकते हैं वो सबका क्वेश्चन आंसर आई कवर। एंड देन एक सेक्शन आता है जहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। सो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना पूरा क्वेश्चन आंसर्स का लिस्ट रखती थी, ताकि मुझे जब भी न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू कॉल आता है, तभी मैं क्या करूं, उसी डॉक्यूमेंट को एक बार मैं गो थ्रू कर लूं, सो दैट आई डोंट हैव टू जंबल हियर एंड देयर, और मैं कंपनी का प्रोफाइल पढ़ लूं एंड आई एम गुड टू गो फॉर द इंटरव्यू। मेनी पीपल व्हाट दे डू, थोड़ा इधर से पढ़ेंगे थोड़ा उधर से पढ़ेंगे, जितने बार इंटरव्यू के लिए कॉल आया आप यहाँ वहां भटक रहे हो। सो बेटर प्रिपेयर वन वर्ड डॉक्यूमेंट एंड कीप एवरीथिंग एट वन प्लेस। ओके, देन प्रैक्टिस योर इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 5 टाइम। आप अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से रट्टाफाई कर लो, बट जब आप अपनी इंट्रोडक्शन को जब बोलते हो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने रट्टाफाई किया। इट शुड लुक नेचुरल, इट शुड लुक लाइक आप याद करके बोल रहे हो, आप खुद से बोल रहे हो। तो आपको रट्टाफाई आपने किया ये आपको पता है, बट इंटरव्यूअर को आपको देख के नहीं लगना चाहिए कि ये सब रट्टाफाई करके कुछ बोल रहा है। ओके, बिकॉज दे आर स्मार्ट, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, उनको पता चल जाता है कि अरे इसने सब रट लिया है। क्योंकि इंट्रोडक्शन मोस्टली सब लोग तो रट ही लेते हैं ना, तो उनका वो उनको पता चल जाता है अगर आपने रट्टाफाई किया रहेगा। तो योर डिलीवरी शुड बी रियली नेचुरल। ओके, प्रिपेयर योर इंटरव्यू आउटफिट ऑलवेज। जितने भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हो उसके लिए जरूरी नहीं कि यू रियली नीड टू हैव डिफरेंट आउटफिट्स, कि मैं अलग अलग कपड़े पहन के जाता हूँ। फॉर एनी, अगर मैं एक कपड़े भी पहन के जाती हूँ, मतलब एक आउटफिट भी मैं अपना डिसाइड कर लिया है, 10 इंटरव्यू में भी जा रही हूँ, तो उनके लिए तो मेरा आउटफिट फॉर द फर्स्ट टाइम ही है, राइट। सो मेक श्योर योर इंटरव्यू आउटफिट इज क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि ओके दिस इज माई प्रोफेशनल अटायर दैट आई नीड टू कैरी every time I am going for an interview, so that there won't be any confusion and last minute decision fatigue. Okay, mock interview is also very important. अगर आपका कोई friend, कोई senior, आपके dad, mom, dad, anyone who is there who can help you with the mock interview, then go ahead. It helps you identify the mistakes that you are doing live, and मॉक इंटरव्यू बहुत होते हैं, बहुत अच्छी चीज होती है। इफ यू कैन डू, डेफिनेटली गो अहेड विद दैट, वी आल्सो हेल्प विद दैट। ओके, देन दीज आर द की टेक अवेज। आपका रेज्यूमे आपका मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, योर लिंक्डइन इज योर क्रेडिबिलिटी रेज्यूमे। आपको इंटरव्यू मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, प्रोफेशनल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Every time you are drafting an email or attending a call, make sure you are following the etiquettes that we studied. Okay. And the STAR framework is something that you really need to take care of every time you are going to answer a question, so that you are not randomly speaking anything and everything that comes to your head. Because अगर आपके thoughts structured नहीं है, सामने वाले को समझ में नहीं आएंगे, और समझ में नहीं आएंगे तो that person is really not going to शॉर्ट लिस्ट यू, बिकॉज उसके माइंड में आपके लिए वो लीडरशिप वाली और वो राइट कैंडिडेट वाला फील आएगा ही नहीं। ओके, so we are done for the today almost. It's good that you attended. It shows that you are actually serious enough. So these are the help that we provide. So if you are looking out for something like that where you need my assistance, you can definitely save this and you can reach out to me. Or else if you can do it by yourself, that's a great thing. But in case you need my help, this is definitely I'm there for you. Okay. So any question now, guys? किसी को कोई question, please feel free to ask. Now I will take the questions.
Yes, we have. So जैसे आपको अगर सिर्फ रेज्यूमे में हेल्प चाहिए या फिर इफ यू नीड एनी हेल्प इन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन या फिर मॉक इंटरव्यूज और यू वांट टू attend any other course, then that is there, and these are the packages where you get many complimentary services also. Okay, any other doubt to anyone? बिंदास पूछो यार, कुछ भी क्वेश्चन. You attended any interview and your experience was not good, you noted something. Ask anything. Have you attended any interview so far? I'm waiting for your questions. Yes, discovery call is possible, but that is only generally if someone is looking out for full style transformation or personality transformation. In case of interview, it's generally we take mock interview practice, and that's when the one-on-one call happens. Okay. Any doubt related to resume, LinkedIn, or how to answer the question? Anything else? Vaibhav, are you clear? सो फ्रेश ग्रेजुएट में ना मोस्टली आपका जो इंटरव्यू देखता है वो आपके एटीट्यूड को देखता है. ओके, नाउ इट इज स्पेशली वो जेंजी वाला जो एरा है उसमें इंटरव्यूअर्स जो बेसिक क्वेश्चंस बेसिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना वो ये है कि जेंजी है ना बहुत इम्पेशेंट है, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है. एंड इफ यू कैन प्रूव दैट यू आर समवन हु इज a person with the positive attitude, you are the person who can actually take effort, you are flexible, then they are happy to hire you. So being Gen Z, I will tell you, have little bit of patience, be ready to do the hard work and be a person with a positive attitude, because if you don't do that, they will not hire you. So especially these are the things that matters most. जो फ्रेशर्स होते हैं उनमें वो स्किल्स नहीं देख रहे होते, उनको पता होता है आप फ्रेशर हो, बट हाँ आपका एटीट्यूड मैटर्स मोस्ट. फ्रेशर्स के लिए देखो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्किल आपके लिए रेलेवेंट है, इन डिमांड है, आई वुड से. सो इफ यू आर इनटू क्रिएटिव फील्ड तो एआई का तो देखो एआई है, एक होता है जनरल यूज और एआई होता है कि आपके काम में कैसे यूज करोगे. सो इफ यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल यू शुड लर्न एआई इन फाइनेंस. इफ यू आर अ मार्केटिंग प्रोफेशनल यू शुड लर्न एआई, हाउ टू यूज एआई इन मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन. सो ऐसे ही आपको एआई का कोर्स तो करना है, बट हाउ इट विल हेल्प इट इन योर डोमेन, नॉट द जनरल एआई. आजकल सबको पता है चैट जीपीटी कैसे यूज करूंगी. ओके, so these skills matter. Not only AI, also if you are getting into जैसे Excel बहुत basic होता है, हर एक कंपनी में यूज होता है. You should know Excel, you should know any other things. Whatever you feel कि easy to do है और valuable भी है, to do it. Anything else? Okay. So Vaibhav, are you clear? Yes, ma'am. Here. Okay, good. So I hope I have answered everyone. Any other person, any question? Vaishnavi, I think I have answered your question. Okay, great. So we are done for today. And let me know if you have any feedback or anything. I will share the resources with you on under course section. Okay, so you will get probably access in within 2 to 3 days. And anything else, you can reach out to me on WhatsApp. Okay, so we are ending the session now. Have a great day ahead. Chalo, bye bye, guys. Okay.